हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TIRM यानी कि डिप्लोमा इन ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, विच इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन। तो इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन में आपके पास दो एग्जाम रहते हैं। फर्स्ट एग्जाम आपका 7th of January को रहने वाला है एंड सेकंड एग्जाम विल बी ऑन 21st of January over there। एंड इन पर्टिकुलर दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड द मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस which have already been asked in the different exams of TIR. So if you are preparing for the same, you must be watching this video till end and do not forget to share this video with your friends and colleagues who have been preparing for the same. You can also like the video and let us know in the comment section below if you are facing any issues related to this particular video or if you have any suggestions related to the same. And अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए and press the bell notification icon so that you get updated whenever we upload the new videos over there. And moreover, let me just tell you one thing more, that we are having the free PDFs of all the subjects of certification. So if you are seeking the free PDFs for the same, those are available at our website. The link is actually available in the description below. So simply just check out the description and visit the website over there. Simply click the sign up over there and further you can avail the free PDFs. So let's now dig into the video and let's start the session over here. So the first question over here, it says, who is responsible for overseeing and monitoring the liquidity positions, risk management practices and overall financial health of banks including their treasury operations? ALCO, that is the Asset Liability Management Committee, Reserve Bank of India, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी और द फॉरेन एक्सचेंज फेडाई डीलर्स यानी बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है या डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है जो कि यहाँ पर ओवरसी करता है एंड मॉनिटर करता है लिक्विडिटी पोजीशंस को, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को एंड ओवरऑल जो फाइनेंशियल हेल्थ होती है बैंक्स की उनको रिलेटेड टू their treasury operations also. So answer over here, it's actually related to the Reserve Bank of India. तो Reserve Bank of India यहाँ पर ओवरलुक करती है एंड फर्दर जो Reserve Bank of India है वो यहाँ पर लिक्विडिटी जो पोजीशंस होती है, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ होती है इंक्लूडिंग द ट्रेजरी ऑपरेशंस, उनको भी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो ही ओवरलुक करता है अगर हम पूरे के पूरे बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बात करते हैं। ओके, नाउ let's move to the second question over here. It says, which organization formulates rules around Indian interbank forex dealings and ensure adherence to a code of conduct for dealers over here? Reserve Bank of India, Asset Liability Management Committee, FEDAI या फिर FIMDA, that is a Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India over here. So which of the following would be the right answer in that regard? Kindly do answer in the comment section below. जल्दी से जल्दी आंसर यहाँ पर पोस्ट कर दीजिए। तो जब भी यहाँ पर हम फॉरेक्स डीलिंग्स एंड यहाँ पर बात करते हैं तो वहां पर एक ही चीज दिमाग में आती है, दैट्स रिलेटेड टू फेडाई, दैट इज अ फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब जो फेडाई होती है ना बेसिकली वो यहाँ पर स्पेशलाइज करती है किसमें, फॉरेक्स मार्केट में स्पेशलाइज करती है, वो रूल्स को फॉर्मुलेट करती है जो कि इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स को लेकर के आपस में डील किए जाते हैं, या फिर पर्टिकुलरली अगर हम अधेरेंस की बात करते हैं रिलेटेड टू कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहेगा डीलर्स के बीच में, उसके बारे में भी कौन डील करता है, दैट इज आल्सो द फेडाई ओवर हियर। सो द राइट आंसर ओवर हियर is related to option C over here, that is the FEDAI over here would be the right answer. Now let's move to the next question over here. It says, what is the purpose of Asset Liability Management Committee ALCO in Treasury Operations? यानी कि Treasury Operations में इनका क्या लेन देन है उसके बारे में हमने यहाँ पर आंसर पोस्ट करना है। एंड फर्दर इट सेज सेटिंग अप द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस या फिर रिव्यूइंग द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंपैक्ट जो कि बैलेंस शीट के ऊपर पड़ता है उसके रिलेटेड ALCO देखती है, या फिर मैनेजिंग द मार्केट रिस्क इन अकॉर्डेंस विद द particular instructions from the risk management committee over there, या फिर managing the bank's interface with the international domestic financial markets over there. तो यहाँ पर particularly जो ALCO है, it is a asset liability management committee है, वो particularly क्या काम करते हैं? अगर आप हायरार्की को भी माइंड में रखें ना तो सबसे पहले आते हैं कौन, टोटल ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रहती है। फिर आपके पास बोर्ड लेवल एक सब कमेटी आती है, दैट इज अ बोर्ड लेवल कमेटी ओवर देयर, एंड उसके बाद वी आर हैविंग द एल्को ओवर हियर, ठीक है, दैट इज अ एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी ओवर हियर। तो यहां पर क्या कामकाज रहता है यहां पर एल्को का, उसके रिलेटेड फटाफट से यहां पर आंसर पोस्ट कर देना है। एंड द राइट आंसर ओवर हियर इज इट इज रिलेटेड टू जो कि मार्केट रिस्क को मैनेज करना, यानी कि जो भी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी RMC ने जो भी यहां पर इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसके हिसाब से मार्केट रिस्क को मैनेज करने का काम किसका रहता है, दैट्स रिलेटेड टू द ALCO ओवर देयर, दैट इज अ एसेट लायबिलिटी
लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी का यहाँ पर ये रोल रहता है। ओके, सो दैट विल बी द राइट आंसर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओवर हियर। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहता हूँ रिलेटेड की फुल कोर्स जो है डिप्लोमा इन ट्रेजरी एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट का, वो यहाँ पर अवेलेबल है एंड फॉर द यू कैन गेट एनरोल इनटू द सेम एंड फॉर द कैन गेट एक्सेस टू द फुल कोर्स वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड आशीष so as to get flat 82% off on all the listed courses over there. Now let's come back to the next question over here and it's related to which principle emphasizes the importance of maintaining confidentiality of trading activities and secure access media in treasury operations over there. That is related to management controls, recording of conversations, security and confidentiality, or know your counterparty. Which of the following would be related to the same, which basically emphasizes the importance of maintaining the confidentiality of the trading activities. यानी कि जो कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो रही हैं उनसे रिलेटेड कॉन्फिडेंशियलिटी क्लोज से रिलेटेड क्या क्या चीजें यहां पर ध्यान में रख सकते हैं, कौन से प्रिंसिपल बेसिकली इस चीज के रिलेटेड बात करते हैं। सो द राइट आंसर ओवर हियर एज द नेम सजेस्ट इट्स रिलेटेड टू द सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ओवर हियर। सो ऑप्शन सी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। तो ऑप्शन सी जो है यहां पर दैट वुड बी द राइट आंसर इन दिस particular mark over here. Okay, so that will be the right answer. Now let's move to the next question number 5 over here. It says what is the purpose of delivery versus payment settlement mechanism in securities transaction? यानी कि DVP का क्या पर्पस होता है? Now let's understand this particular question and let's have a look at the options over here. It says ensuring simultaneous transfer of securities and funds, eliminating the settlement risk in transactions, maintaining confidentiality of parties involved in the transactions, ensuring adherence to the internal limits and guidelines. तो DVP जो होता है पर्टिकुलरली वो किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है उसके रिलेटेड हमने यहां पर आंसर पोस्ट करना है। तो यहां पर जो DVP सेटलमेंट होती है वो एक मोड ऑफ सेटलमेंट है जहां पर जो सिक्योरिटीज है एंड फंड्स है वो साइमल्टेनियसली उनका ट्रांसफर होता है। इस चीज से बेसिकली इस चीज की इंश्योरिटी होती है कि सिक्योरिटीज तब तक डिलीवर नहीं होंगी जब तक फंड्स नहीं मिलेंगे एंड वाइस वर्सा। तो यानी कि इसके थ्रू आपका जो सेटलमेंट रिस्क होता है वो यहां पर अवॉइड होता है। सेटलमेंट रिस्क जैसे कि आपके पास हर स्टेट रिस्क के केस में जानने को मिला था कि जर्मनी का बैंक फेलियर हो गया एंड वहां पर टाइम जोन डिफरेंस था, वहां पर से फंड्स निकल गए लेकिन इधर से नहीं हुआ। तो डीवीपी बेसिकली क्या होता है कि आप जब सिक्योरिटीज डिलीवर करोगे साथ के साथ फंड्स भी साइमल्टेनियसली यहां पर ट्रांसफर होंगे। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द डीवीपी ओवर देयर। तो यहां पर सही आंसर जो रहने वाला है दैट्स रिलेटेड टू द option B over here, that is eliminating settlement risk in the transaction over here. That will be the right answer for the question number 5 over here. Now let's move to the next question. It says what is the प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी इन द ट्रेजरी ऑपरेशंस। तो यहां पर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एल्को की क्या रहने वाली है? लेट्स हैव अ लुक एट द डिफरेंट ऑप्शंस ओवर हियर। इट सेज मॉनिटरिंग द लिक्विडिटी पोजीशंस ऑफ द बैंक, सेटिंग लिमिट्स फॉर द वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस, कंडक्टिंग रेगुलर ऑडिट्स ऑफ ट्रेजरी एक्टिविटीज, मैनेजिंग द बैलेंस शीट विद इन द बोर्ड्स पैरामीटर ओवर देयर। सो व्हाट विल बी द मेन पर्पस ऑफ एल्को ओवर देयर? एल्को का मतलब क्या है? ऑन द वन साइड वी आर हैविंग द एसेट्स, एक साइड पर हमारे पास एसेट्स हैं एंड ऑन द अदर साइड वी आर हैविंग द लाइबिलिटीज ओवर हियर। यानी कि एक साइड पर मेरे पास एसेट्स हैं, ऑन द अदर साइड आई एम हैविंग द लाइबिलिटीज ओवर हियर। अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए एसेट्स क्या है, यानी कि अगर आप लोन दे रहे हो, ठीक है, if you are basically granting the loans over there, sanctioning the loans over there, that's an asset or liability, that's particularly an asset। तो बैंक के लिए एसेट है एंड लाइबिलिटी क्या रहेंगे? जो डिपॉजिट्स हैं वो पर्टिकुलरली क्या है? दोज आर योर लाइबिलिटीज ओवर देयर, क्योंकि आपको वो रीपे करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। सो दैट्स पर्टिकुलरली योर लाइबिलिटी। तो यहां पर अगर मैं डिपॉजिट्स की बात करता हूं तो वो यहां पर पर्टिकुलर क्या रहते हैं? दोज आर योर लाइबिलिटीज ओवर हियर, ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मैच आउट करना वो पर्टिकुलर किसका काम है? दैट्स रिलेटेड टू द एल्को ओवर देयर। तो एल्को कहां पर होता है? एल्को का मेन मतलब क्या आएगा कि जो बोर्ड ने पैरामीटर सेट किए हैं, बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने जो पैरामीटर सेट किए हैं उसके हिसाब से आपको यहां पर बैलेंस शीट को मेंटेन करना होगा। दैट्स द मेन ब्यूटी ऑफ द एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी ओवर देयर। सो ऑप्शन डी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ओवर हियर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग कन्वर्सेशन इन द डीलिंग रूम? तो जो भी कॉन्वर्सेशंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करने का क्या पर्पस होता है? टू इनहांस द रेपुटेशन ऑफ द मार्केट्स, टू इंश्योर कंप्लायंस विद द मार्केट रेगुलेशंस, टू फैसिलिटेट स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स एंड टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटीज। व्हाट इज द मेन पर्पस? तो मेन पर्पस ये रहता है कि अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट आ जाता है, कोई भी डिफरेंसेस आ जाते हैं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने ये बुकिंग नहीं करी, तो ये चीज कोई पर्सन रेप्यूडिएट ना कर पाए, उस चीज को
को बेसिकली हटाने के लिए यहां पर जो कॉन्वर्जेशंस होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है. सो अकॉर्डिंगली द आंसर ओवर हियर इज रिलेटेड टू what it is related to the option C over here would be the right answer. That's related to facilitate the speedy resolution of the differences and the disputes over here. Okay, now let's move to the next question number 8 over here. It says according to FIMDA's handbook, यानी कि जो FIMDA की handbook है, FIMDA के rules regulations हैं, उनके हिसाब से what is the principle behind the conducting deals in the Indian market over there. तो यहाँ पर particularly क्या यहाँ पर handbook के हिसाब से क्या है? Transparency and accountability, enhanced reputation in the market and the personal investment opportunities, complying with changing market regulations. What would be the right answer over here? तो यानी कि जो यहाँ पर deals conduct की जाती है इंडियन मार्केट में, वो बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड होती है? 2000 बेस्ड ऑन द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. यानी कि फिम्डा की हैंडबुक ये स्टेट करती है कि ट्रांसपेरेंसी एंड फर्दर रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से आपको इन चीजों को सेटअप करना है, डील करना है. सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द फिम्डा's हैंडबुक. सो दैट वुड बी द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड. सो ऑप्शन ए ओवर हियर वुड बी द right answer. So option A is the right answer for the question number 8 over here. Now let's move to the next question over there, and let me just tell you one thing. If you want to get the free access of the PDFs, so simply do WhatsApp TIRM. You are to write TIRM and do mention PDF over here, and simply do WhatsApp it to the number 83609 44207 and our team will be rewarding you back. ठीक है, तो आपके पास लिंक आ जाएगा, वहां पर जाकर के सिंपली आपको साइन अप करना एंड विल बी गेटिंग द एक्सेस टू ऑल द PDFs of TIRM over there. Right, now let's move to the next question over here. It says which office in the treasury is responsible for confirmation, settlement and reconciliation. तो ट्रेजरी के ऑपरेशंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3 हमारे पास ऑफिसेज होते हैं ना, जैसे फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस होता है. ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर ऑफिस रहता है तीनों में से विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंफर्मेशन, यानी कि जो कंफर्म करेगा डील्स को, सेटलमेंट को करेगा, रिकंसिलिएशन करता है. सो विच ऑफिस इज हैविंग द मेन वर्क रिलेटेड? तो बैक ऑफिस जो होता है दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंफर्मेशंस, यानी कि जो कोई भी कंफर्मेशंस हो रही हैं एंड जो भी सेटलमेंट्स हो रही हैं, रिकंसिलिएशंस हो रही हैं ट्रेजरी में, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बैक ऑफिस वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम. तो यहां पर जो आंसर है दैट्स रिलेटेड टू ऑप्शन सी ओवर हियर. दैट विल बी द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड. तो ऑप्शन सी जो रहेगा दैट विल बी द राइट आंसर ओवर हियर. ओके, now let's move to the question number 10 over here. It says what is the purpose of conducting due diligence and know your counterparty checks before dealing. यानी कि जब भी हम कोई डीलिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ चीजों की एहतियात बरतते हैं, कुछ एक चीजों का हम ध्यान रखते हैं. So what is the purpose of conducting those due diligence and know your counterparty? Like know your customer is basically related to when we are dealing with the customers over there, and when you're dealing with a counterparty over there, you basically have the concept of the know your counterparty, where you're having all the details related to your counterparty, to whom with you are dealing with, and all the details related to it. Okay, तो क्या मेन पर्पस रहता है? To enhance the reputation, to maintain confidentiality, to understand the counterparty's motives and identity, to comply with the protocols over there. तो डेफिनेटली हम कस्टमर के बारे में जानते हैं, कस्टमर की इच्छा के बारे में कि कस्टमर किस तरह का है, उसकी कितनी टर्नओवर रहने वाली है, क्या डील वो करेगा, क्या नहीं करेगा, उन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए सेम वे में जब हम काउंटर पार्टी के साथ डील करते हैं, अवर मेन पर्पस इज रिलेटेड टू हम काउंटर पार्टी का मोटिव जानना चाहते हैं, उसकी आइडेंटिटी को जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्लैक मनी में इन्वॉल्व हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का कंसेप्ट ना हो. तो दैट इज द मेन फंडा रिलेटेड. तो आंसर यहां पर जो रहने वाला है टू अंडरस्टैंड द counterparties motives and the identity over there. So that's the main funda related. So option C over here would be the right answer. Okay, now let's move to the next question number 11 over here. It says what is the significance of DVP? तो DVP का क्या significance है? Already we have covered, यानी कि settlement risk को cover करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. Again the question is repeated over here. आंसर आपको पता ही है. I hope कि आपको यहाँ पर ये concept इसके related यहाँ पर clear हो गया होगा. अगर आप अभी तक वीडियो को go through कर रहे हैं and you're finding the video useful for you, so do like the video at the earliest and फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ जो भी यहाँ पर ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं. एंड इसके डिटेल्ड वीडियो रिलेटेड टू कि क्या फी स्ट्रक्चर है, कितने मार्क्स चाहिए, क्या क्राइटेरिया चाहिए, वो सारी की सारी वीडियो भी अवेलेबल है. यू कैन विजिट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ओवर देयर एंड कैन फाइंड द वीडियो ओवर देयर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर. इट सेज व्हाट इज द रिकमेंडेड प्रैक्टिस रिगार्डिंग सीकिंग काउंटर पार्टी नेम्स बिफोर ट्रांजैक्टिंग? तो डीलर शुड सीक काउंटर पार्टी नेम्स बिफोर ट्रांजैक्टिंग. ब्रोकर शुड डाइवर्ज द काउंटर पार्टी नेम्स बिफोर concluding the deal. Dealers and brokers should maintain the confidentiality, and dealers and brokers should confirm the deals orally instead of seeking counterparty names over there. So what would be the main concept related to the question number 12 over here? तो dealers जो होते हैं and जो brokers होते हैं, तो recommended practice ये रहती है कि they should be maintaining the confidentiality, यानी कि
आप पर्टिकुलरली जो ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हैं उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो डीलर्स जो होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, उनको ट्रांजैक्शन की डिटेल्स को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए पार्टीज जो भी इन्वॉल्वड है उनके बीच में ही, एंड किसी और के पास वो डिटेल्स नहीं जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नाम जो भी हैं पार्टीज के उनको एक्सप्लोर कर दो या फिर उनको हाईलाइट कर दो, ऐसा नहीं होगा। आपको उनकी जो भी पर्टिकुलर कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको मेंटेन करके रखना ही चाहिए। सो ऑप्शन सी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फिमडास हैंडबुक व्हेन इज अ रिटन कंफर्मेशन ऑफ ईच डील इज नेसेसरी। तो कौन से केसेस में जो आपके पास यहां पर रिटन डील होती है वो यहां पर कंफर्मेशन नेसेसरी होती है। सो वी आर हैविंग द फोर ऑप्शंस फॉर ऑल द डील्स जो भी आपकी वॉइस के ऊपर होती है, यानी कि टेलीफोनिकली कर रहे हो या वॉइस नोट पर कर रहे हो या फिर ओवर द काउंटर प्लेटफॉर्म पर है, या फिर आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड जो एनडीएस यानी कि नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम की आपकी ओएम डील्स हैं, या फिर आईआरएस ओएस डील्स हैं जो सीसीएल के प्लेटफॉर्म पर हुई हैं, या फिर डील्स आपकी कॉर्पोरेट बॉन्ड से रिलेटेड है जो कि ओटीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर है। तो जो कोई भी आपकी कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म के ऊपर डील्स होती हैं, ठीक है, यानी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की डील होती है ओटीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसके केस में रिटन कंफर्मेशन जो होती है हर एक डील की वो यहां पर मैंडेटरी होती है। सो दिस वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 13 ओवर हियर, दैट्स रिलेटेड टू कि यहां पर चीजें रिक्वायर्ड रहेंगी, आपको पर्टिकुलर डील करना पड़ेगा, डन करना पड़ेगा, राइट, रिटन कंफर्मेशन चाहिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ शुड डिफरेंसेस इन पेमेंट और डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस बी रिजॉल्व। तो डिलीवरी पेमेंट के बीच में, इंस्ट्रक्शंस के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो किस तरह से रिजॉल्व होगा भाई, उसके बारे में भी जान लेते हैं। बैक ऑफिस शुड unilaterally decide on the correct instruction. The front office should negotiate with the counterparty to reach a resolution. Risk management committee should intervene and make a final decision. The relevant parties should mutually agree on the contract instructions over there. तो अगर कोई डिफरेंसेस हैं डिलीवरी से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, तो रेलिवेंट पार्टी जो आपस में करेंगी ना, देखो जो बैक ऑफिस यहां पर रिकॉर्डिंग करता है, पर्टिकुलरली यहां पर कन्वर्सेशन के डीलिंग रूम में जो रिकॉर्डिंग होती है उसका इस्तेमाल हो सकता है उसको डील करने के लिए, रेजोल्यूशन पर पहुंचने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली जो रेजोल्यूशन होगा वो तो दोनों पार्टीज आपस में मिलकर करने वाली हैं। सो अकॉर्डिंगली जो यहां पर सही आंसर है दैट्स रिलेटेड टू ऑप्शन डी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर। एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। इट सेज व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग इन ट्रेजरी ऑपरेशन। स्ट्रेस टेस्टिंग एक्चुअल में होती क्या है? देखिए नॉर्मल कंडीशन के अंदर कोई दिक्कत चल रही है अगर, तो वो पर्टिकुलरली आप डील कर लेते हो। लेट्स से कि यहां पर नॉर्मल कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको तो हम डील कर सकते हैं, नॉर्मल सिनेरियो को डील को तो पता लग गया, लेकिन व्हाट अबाउट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस, यानी कि अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाती है तो उसके साथ कैसे डील किया जाएगा, उसके रिलेटेड हमारे पास कौन सा सिस्टम है, इट्स रिलेटेड टू द स्ट्रेस टेस्टिंग ओवर दिया। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में तो आपने चेक करके देख लिया कि सभी चीजें सही हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द एबनॉर्मल सिचुएशंस, उनको कौन कवर करेगा? स्ट्रेस सिचुएशन में वो चीजें यहां पर हमारे पास कवर होती है। सो बेसिकली इट्स रिलेटेड टू व्हाट, इट्स रिलेटेड टू प्रेडिक्ट मार्केट ट्रेंड्स एंड मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। नो, इट्स नॉट रिलेटेड टू मार्केट ट्रेंड्स के रिलेटेड, तो ये तो हमारे पास आंसर नहीं है। ऑप्शन बी ओवर हियर इट सेज टू आइडेंटिफाई potential weaknesses and vulnerabilities in the system. Yes, that is actually related to it. Option C it says to evaluate the credit worthiness. तो evaluation के लिए भी नहीं है ना, ये वाला पार्ट भी नहीं है. And to comply with the regulatory requirements. No, this is actually not related to regulatory requirements over there. It's related to आप अपना overall risk जो है उसको मैनेज करना चाहते हो, उसको कम करना चाहते हो. That is the main funda related to using the stress testing over there, right? So that will be related to question number 15 over here. So I hope कि आपको यहां पर सारे के सारे जो भी पार्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सो लेट मी टेल यू वन थिंग अगेन कि इस पर्टिकुलर वीडियो में तो हमने ये क्वेश्चंस कवर किए हैं, बट बहुत से ऐसे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो यहां पर आपको मिलने वाले हैं अलॉन्ग विद द फुल कांसेप्ट्स ऑफ दिया। तो फटाफट से बिना वक्त गवाए हुए हमारी जो वेबसाइट है iibf.info, वहां पर जाकर के विजिट कर लीजिए एंड वहां पर जाकर के साइन अप करना है आपको। वहां पर आपको फुल कोर्स मिलने वाला है वीडियोस का, TIRM का, जिसमें हमने बहुत अच्छे मैनर में सब चीजों को कवर किया है। सो डू गो थ्रू द सेम एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो।